Assalamualaikum everybody. Welcome to DK Study Hub. Today's session number 10 or lecture number 10. Yesterday we learned about what is equilibrium and what is perfect competition and how firm and industry work under perfect competition. And we have talked about its main features, assumptions or conditions. And today we're going to learn about the explanation of this topic, which is very crucial and very difficult, so please pay attention to this topic. So we've learned about what is perfect competition. I'm gonna give you an overview about yesterday's session. Then we're gonna start to learn about the diagrams and stuff. So first of all, yesterday we've learned about the perfect competition is a business where a lot of there's a large number of buyers and sellers in the market, and they included the one who produced the identical products, like someone producing packaging milk, or someone producing something like chips or something which is very identical to each other. These are called perfect competition, and the perfect competition industries are included. The main features of perfect competitions are they have large number of buyers and sellers, and the entry and exit is totally free. They can easily enter and exit, and there are homogeneous products, like they're identical products. They sell identical products, and the factor of production are totally perfectly mobile, and the land can be freely purchased, or anything can freely move, and we can move from one farm to another. And the fifth thing we have learned, the buyer and seller have perfect awareness about the market conditions, because every other product is the same price and the same quantity and same quality. So the buyer and sellers knows the perfect awareness about the market condition. Then the government interference is not there. They are free, the free market, and there is no government interference, so they can freely do whatever they want. And the last assumption or necessary assumptions we've talked about is free from any sort of collusion. In perfect competition, there is no secret agreement between firms, so they can freely sort any collusion or something. So our firms are independent in their decision making. They're not agreeing secretly. They tell all independently and individually. So these are some assumptions of perfect competition we've talked about yesterday. Let's begin our topic. So explanation. The explanations and the diagrams of how it works. First, we're going to talk about a short one, then we're going to talk about a long run. Okay. So here's the first case, the equilibrium in case of losses. So in this diagram, first of all, I'm gonna explain it in Urdu too. तो आज जो हमारी explanation है वो ये है कि equilibrium in case of losses. तो equilibrium कब कैसे पॉइंट होता है और इसकी डायग्राम के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम डायग्राम समझते हैं, देन उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया वाई एक्सिस पे प्राइस पर यूनिट, एंड एक्स एक्सिस पे लिया हमने आउटपुट। इसका जो है मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, डिमांड और ये सारी चीजें, एवरेज रेवेन्यू, ये सारी चीजें एक स्ट्रेट लाइन होती हैं। ये मतलब ना ऊपर होती है ना नीचे की, ये एक कांस्टेंट रहती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सारी प्रोडक्ट्स की एक जैसी प्राइसेस होती हैं। तो फर्म्स के नॉट अफोर्ड दैट कि वो अपने प्राइसेस ऊपर करेंगे अगर या हाई कर देंगे। नॉर्मली अगर $20 की कोई चीज मार्केट में बिक रही है और हम उसको $25 का बेचे, तो लोग जो पर शिफ्ट करते हैं। तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस और डिमांड सारी चीज़ें इसकी कांस्टेंट रहती है। इसलिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देन इसके अंदर हमें दिख रहा है कि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ा था ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहा करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि ये कर्व से हो क्या रहा है। यू कैन सी दैट एवरेज टोटल कॉस्ट का यहाँ कर्व है, जो कि उसके ऊपर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के,
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ये रहा। और हम नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा रेवेन्यू या प्रॉफिट किस तरह निकलता है कि जब हमारी रेवेन्यू और हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। या नॉर्मली अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि कॉस्ट में से जब एक्सपेंसेस में से हम सारी हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं और जितनी हमें इनकम हुई है उसमें से जो हम माइनस करते हैं, जो हम नॉर्मली एक अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि एट लास्ट हमारा प्रॉफिट कितना आया। तो इसके अंदर भी यही है कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है और हमारा जो टोटल प्रॉफिट किस तरह होगा कि एक्सपेंसेस या तो इक्वल हो और रेवेन्यू के, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई तो एज यूजुअल लॉस होगा। तो इसमें भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC जिसे हम कहते हैं वो यहाँ है कर्व। इसका ये कर्व आपको दिख रहा होगा। देन हमारा ATC का कर्व जो है वो राइट ओवर देयर है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा लॉस दिखाई दे रहा है ये वाले पॉइंट पे। अब हम इसका आप लोगों ने ये देख लिया ये क्या है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। इन दिस डायग्राम OP इज गिवन प्राइस। ओ ओ पॉइंट मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट है जहाँ जीरो होता है, उस OP या 0P या वट इसको हम कह सकते हैं। तो OP इज हमारी गिवन प्राइस, ठीक है। और द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट विच फर्म हैज टू सेल इज प्रोडक्ट। तो इसको अपनी प्रोडक्ट जो है ओ से लेके पी तक बेचनी है, ठीक है। एंड देन सिंस द प्राइस इज बिलो एवरेज कॉस्ट, प्राइस हमारी एवरेज कॉस्ट से बिलो, यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर कि पी जो है हमारी कम है, हमारी ATC से हमारी प्राइस जो है वो बहुत कम है। तो उससे क्या हो रहा है कि ATC से हमारी प्राइस कम है, उसकी वजह से इनकम कम आ रही है और हमारा टोटल लॉस हमें हो रहा है। हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और हमारी प्राइस ज़रा कम है, जिसकी वजह से हमारी फर्म को लॉस पे करना पड़े। तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी। एज शोन इन द शेडेड, मैंने यहाँ शेड नहीं किया, ये मैंने मैनुअली बनाया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए होंगे कर्व्स। तो अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं आपको क्लास के बाद जो है रफली पेपर पे भी बना के दिखा दूंगी। लेकिन आई डिड माई बेस्ट टू आपको समझाने के लिए ताकि आप लोग इजीली समझ जाए। ओके, देन इसकी सेकंड हम देखते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने जैसे बताया था कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वल चल रही हैं। प्राइस हमारी सारी चीज़ें इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस नो अर्निंग। तो अब इसकी हम इक्विलिब्रियम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इन दिस डायग्राम OP इज प्रिवेलिंग प्राइस। यहाँ पे OP ये रहा है, O and P पर यूनिट विच फर्म हैज टू सेल इस प्रोडक्ट। यहाँ पे उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है सिंस एट द गिवन प्राइस, नॉट जस्ट covering its total fixed cost and not earning many profits। तो total fixed cost जो है हमारी इक्वल टू टोटल इनकम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस है। देन हम लोग देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, इक्विलिब्रियम इन केसेस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे होगा, तो OP इज ए गिवन प्राइस एज यूजुअल, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी गिवन प्राइस है। अब यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है एट विच फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट। अब फर्म ने क्या किया, अपनी प्राइस बढ़ाई होगी या कुछ किया होगा, तो OP हमारी प्राइस है। अब क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट का कर्व आपको दिख रहा है, प्राइस के अंदर आ रहे हैं, जहां हमारी प्रिवेलिंग प्राइस थी उसके अंदर अंदर ATC का हमारा कर्व है। एंड देन हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ATC यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ATC मतलब और ये दोनों चीजें बराबर थी। यहाँ क्या था, ATC जो है वो ऊपर था, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी प्राइस कहाँ है जा रही है और हमारी टोटल कॉस्ट कहाँ जा रही है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे ATC का कर्व जो है वो अंदर है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कम इनकम ज्यादा हो रही है अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अब गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट कम है, अंदर है। तो अब यहाँ पे भी हमें लिखा हुआ दिख रहा होगा एट विच फर्म सेल इज प्रोडक्ट, पॉइंट E। मैं सॉरी मेंशन करना भूल गई हूँ पॉइंट E।
तो in this equilibrium gaining supernormal profit because its point E is greater than average revenue, ये जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे कोलाइड मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट ई है। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। तो मैं अभी इंशाल्लाह उसको मेंशन कर दूंगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे है, अम, यहाँ कहीं हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट, यहाँ पे हमारा एटीसी का कर्व नीचे है और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और कम है और हमारा गेन हो रहा है, हमारी प्रीवैलेंट प्राइस ज़्यादा है। अच्छा, शट डाउन पॉइंट कब आता है? अब शट डाउन पॉइंट आता है जब हमारी एवरेज रेवेन्यू 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 एवरेज, हमने एक एवरेज बनाया हुआ, तो हमने उसका हद तक एक एवरेज हमने बनाया हुआ है कि हमारा इतना तो रेवेन्यू हो जाना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जो है हमारे जब कॉस्ट से कम होगा, दो टाइप्स की कॉस्ट आप लोगों को पता होगा, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है हमेशा, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो अप डाउन होती रहती है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है और कोई हाउस जो है वो बंद पड़ा हुआ है और कोई उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही, लेकिन आपको लाइन रेंट के नाम से एक बिल आता है, वो आपको देना ही पड़ता है। 1000 समथिंग बिल आएगा हर महीने, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ना यूज कर रहे हो या पावर सप्लाई का कोई वहाँ कनेक्शन या प्रॉपर ना हो, लेकिन मीटर से जो कनेक्टेड है तो आपको लाइन रेंट देना पड़ता है। वो फिक्स है, वो ना ज्यादा होगा ना कम। लेकिन वेरिएबल क्या होता है कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, हमने बहुत सारी एसी एंड फ्रिज एंड वट एवर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले अप्लाइंसेस हैं वो हमने यूज़ की, तो उससे क्या हुआ कि हमारा इंक्रीज हो गया बिल। तो एक तरफ तो है वो 1000 का हमारा फिक्स्ड अमाउंट, और दूसरी तरफ है जो हमने प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट क्या, एक्सपेंसेस बढ़ाए। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएट होती है आगे पीछे। मैंने आपको पहले भी इसका मीनिंग बताया था, होपफुली आपको याद हो और होना भी चाहिए, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कहाँ जा रही है, हमारी प्रेवेलिंग प्राइस से प्रेवेलिंग प्राइस जो कहते हैं। तो को पता ही होगा कि फिर शट डाउन पॉइंट आ जाता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है विच इज दिस वन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हम ये भी कर सकते हैं कि इसको इक्वल्स डी, इक्वल्स डी, यस। तो आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा, इक्वल्स डी इक्वल्स पी। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू भी है इसको, हाँ। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स ए आर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स डिमांड इक्वल्स प्राइस। तो यहाँ पे ये वाली चीजें हैं। तो अगर आपको याद रखना हो तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेट, जैसे जैसे मैंने भी इसको याद किया था। तो हम आपको अगर ये वाली बात याद रखनी हो कि व्हाट ये वाली लाइन पे क्या लाई कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं इसके ऊपर, तो आप इसको मिस्टर डार्प के नाम से याद कर सकते हैं, MRDAR पे, मिस्टर डार्प। सो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि मिस्टर डार्प मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, दे आर इक्वल टू ईच अदर ऑन दिस लाइन। तो ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन से कितना ऊपर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी फर्म को लॉसेस बेयर करने पड़ रहा है और वो सफ़र कर रही है लॉसेस में। और इस सिचुएशन पे क्या होता है कि जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और इनकम बहुत ही कम हो जाए, तो फिर एक ही पॉइंट बचता है, शट डाउन पॉइंट। देन हमारी जो है वो फर्म शट डाउन कर देती है, मतलब अपना बंद कर देती है फर्म, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो फिर और लॉसेस, एंड देन फिर कोई आपके सिवाय लॉसेस और एक्सपेंसेस के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। तो एट दिस पॉइंट फर्म जो है अपनी बंद कर देती है, अपना मतलब शट डाउन कर देती है अपने सेटअप सब
कुछ सेटअप बंद करके देन वो घर चले जाते हैं, क्योंकि आपका वेरिएबल एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, और हमारे प्राइस जो है प्रिवेलिंग प्राइसेस लो। तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं हम लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? यहाँ लॉन्ग रन में यूजुअली क्या होता है कि हमारी एक बस हमें एक चीज, बस एक हमें नॉर्मल सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, इस सुपर नॉर्मल, सॉरी नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन के अंदर। और इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि आपको मतलब ज्यादा या लॉसेस या वो, इसको बस एक सुपर नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, नॉर्मल सा एक प्रॉफिट हो रहा होता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें भी हमने वाई एक्सिस पे रखा प्राइस पर यूनिट, एक्स एक्सिस पे रखी हमने आउटपुट। आउटपुट हमारी ये है, प्राइस हमारी ये है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? लॉन्ग रन, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू या डिमांड या प्राइस, ये हमारा है मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये हमारे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग, तो जो मैंने अभी आपको पूरा बताया एग्जैक्टली वो यहाँ पे सिर्फ बना के आपको शो किया हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू लॉन्ग, सॉरी, यहाँ से मैं देख लेती हूँ और फिर बता देती हूँ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसे हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बता के दिखा है, इज इक्वल्स टू ए आर। यहाँ पे ए आर भी है, एल मैंने मेंशन नहीं किया है। एंड देन लॉन्ग रन, क्योंकि बार बार लॉन्ग रन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इज इक्वल्स टू एल ए सी। तो सारी चीज़ें यहाँ बैलेंस सी चल रही होती हैं, आपको बस एक नॉर्मल सा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे आपको 5, अगर आपके 1000 इनकम है, हाँ, 800 हमारे एक्सपेंसेस है, तो हमें 200 का नॉर्मल सा एक प्रॉफिट हो गया, जिससे फर्म का काम से भी चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो लॉन्ग रन के अंदर कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज में किस तरह इसको डील होता है ये भी देख लेते हैं। ऊपर तो हम फर्म्स की बात कर रहे थे, तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। मस्ट बी द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, demand and supply equal, must be all firm included in this industry should be in the equilibrium whether making profit or having losses। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे ये दोनों का, मैंने इंडस्ट्रीज के यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज का जो डिमांड एंड सप्लाई का कर्व है, द शॉर्ट रन इज इक्वल टू सप्लाई, द दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ये प्राइस लाइन है, और ये हमारा जो है यहाँ से हमें ये प्राइस लाइन है, और ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन, ये सारी चीज़ें इसके अंडर है। तो यहाँ मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है, और डिमांड और सप्लाई का क्या हो रहा है कि यहाँ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट करते हैं, जो कि पॉइंट ई है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी ए आर एन एम आर ये वाला कर्व शो कर रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई जो है, वेदर वी आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉसेस, हमारी डिमांड्स और सप्लाई जो है वो इक्वल होती हैं शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में इंडस्ट्रीज के अंदर। और इसके अंदर भी सेम एग्जैक्टली यही हो रहा है, ये वाला एग्जैक्ट हमने ऊपर अभी देखा है, ये रहा। तो इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि डिमांड और सप्लाई जो है आर इक्वल, द कर्व इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई बाय डिटरमिनिंग द प्राइस ओपी एट price OP, the firm is in the equilibrium at a point F. The minimum point of long run average LAC is making normal profit since firm earning normal profits। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई आर इक्वल, और हमारा जो है वो एवरेज
एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारे प्राइस लाइन के बिल्कुल यहाँ पे है। तो ये टच कर रहे हैं ना, जब टच कर रहा होता है तो सारी चीजें इक्वल होती हैं, और जब ऊपर होता है तो लॉसेस, और जब अंडर होता है प्राइस के अंडर, यहाँ अगर ये वाला कर्व चला जाए तो ये लॉसेस। तो होपफुली ये वाली चीज आपको समझ आई होगी कि यहाँ चल क्या मैकेनिज्म रहा है, और डिमांड और सप्लाई क्यों इक्वल होती है यहाँ ये डिफाइन हो रहा है। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट हो रहा था। तो इक्विलिब्रियम क्या था कि डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, और जिसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था वो यहाँ से स्ट्रेट गया, और ये हमारी जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस बन गई। तो यहाँ जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक जो है हम खत्म होता है। अब एक और इस तरह का टॉपिक है, तो ये हम देखते हैं अभी कि इसके अंदर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारा आज के सेकंड टॉपिक और लास्ट, आज सिर्फ दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मेरे ख्याल से आज वो वाली चीज़ें हजम करना काफ़ी है, तो आज हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन एंड देन इसके हम लोग ये करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, एंड देन जो है कल हम लोग इसकी डायग्राम्स और केसेस पे आएंगे कि इसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और जो है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में किस तरह से डील होता है। तो देख लेते हैं व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ब्लेंडिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली मैंने आपको शुरू में बताया था, फोर टाइप्स होती थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, एंड परफेक्ट भी कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। तो जो है इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि ये एक दोनों का ब्लेंड है। इट इज़ मोर रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट मार्केट सिचुएशन, द प्योर और परफेक्ट competition, then pure or mark of perfect competition and monopoly, wherein monopolistic competition is a such market situation large number of producer or seller compete each other. They produce goods by differentiation of products to compete each other। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, वहां हो रहा था कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है कि ये क्या बना रहे हैं कि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे लेज है, लेज का कंपटीटर क्या है, प्रिंगल्स, या अगर इम्पोर्टेंट चिप्स की बात करें, अगर इम्पोर्टेड चीज़ों की बात करें तो चीटोस हो गए, या बहुत सारे ऐसे चिप्स हैं जो डिफरेंशिएट मतलब होती, वो कैटेगरी स्नैक्स ही हैं, वो चिप्स खाने के ही हैं। उसकी आपका मसाला या फिर वो जो फ्लेवर है जेलपिनो या वट एवर हॉट चिली, या कोई सा भी चीज़ फ्लेवर, तो उसके डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके गुड्स को बेचते हैं। तो डेट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि उसके फ्लेवर्स में वेरिएशन कर दी, उसके साइजेस में वेरिएशन कर दी, उसकी जो क्वांटिटी है या उसके वो जो शेप्स हैं डिफरेंट शेप्स कर दी। जैसे चीटोस हो गए, वो थोड़े लॉन्ग स्टिकी स्टिक्स टाइप लग रहे होते हैं, और लेज जो है वो एक पोटैटो चिप्स टाइप लग रहे होते हैं, जबकि दोनों एक कॉर्न चिप्स हैं और वो है। तो डिफरेंशिएशन है, लेकिन है वो एक ही कैटेगरी की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसके अंदर आ रहा होता है। तो फुली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको क्लियर होगा कि ये दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का ये मिक्सचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके हम तीन करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बस इसके तीन ही करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन अपनी क्लास जो है हम वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी हम लोग वो देखेंगे डायग्राम्स वगैरह, क्योंकि अभी आपने वो वाला काफ़ी ख़तरनाक टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से बच्चों को समझ आते हैं, मुझे आइडिया है, इसलिए मैं आपको ये नहीं करवा रही, फिर मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसलिए कल हम ये वाले इसकी डायग्राम्स देखेंगे, तीन ही डायग्राम्स हैं टोटल। तो इंशाल्लाह शुरू के 15 मिनट्स में कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग नई टॉपिक करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स
Large number of firms in monopolistic competition. Large number of firms participate, but none produces a major portion of the total product being traded. Each firm has to decide its own price, आपको limited control over the price. Large number of firms होती हैं और इसके अंदर वो प्रोड्यूस बस कोई भी मेजर पोर्शन ऑफ टोटल प्रोडक्ट नहीं करता, मतलब ईच फर्म हैज टू डिसाइड, और सारी फर्म्स को अपने ओन प्राइस और आउटपुट और उसकी लिमिटेड कंट्रोल हर चीज़ को डिसाइड करनी होती है, और बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। इसकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? इन सम वे प्रोडक्ट्स being sold by different firms are different from each other. They are not identical. Instead of quite similar products regarding the size, design, shape. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चिप्स की जो हमारी पैकेजिंग है, चीटोस की डिफरेंट होती है, लेस की डिफरेंट होती है, प्रिंकल्स का आपने देखा होगा एक राउंड सर्कुलर सा बॉक्स होता है, लंबा सा सिलेंड्रिक सा बॉक्स होता है, लंबा सा, और बहुत मतलब सारी डिफरेंट पैकेजिंग है, सबकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, क्वांटिटी डिफरेंट होती है, टेस्ट डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर नॉन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ी इंस्टेड ऑफ क्वाइट सिमिलर प्रोडक्ट, दे आर नॉट आइडेंटिकल इंस्टेड ऑफ क्वाइट सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो इसका शेप, फ्रेगनेंस, पैकेजिंग, ईटीसी सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारी जो ब्यूटी सोप्स होते हैं और बॉडी सोप्स होते हैं जैसे, और बॉडी वॉश होते हैं, तो हर प्रोडक्ट का हर कंपनी का डिफरेंट किस्म का होता है, उसकी डिफरेंट फ्रेगनेंस होती है, उसकी डिफरेंट क्या कहते हैं टेक्सचर होता है। तो अगर हम सोप्स की बात करें और अगर हम बॉडी सोप की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट आते हैं, सेफ गार्ड या फिर लाइफ बॉय, या फिर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डिटोल, या बहुत सारी हमारे सब पास वेरिएशंस होती हैं, और उसकी साइजेस वगैरह और शेप्स और उसकी पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो ये वाली बात होपफुली आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किस हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, उसकी पैकेजिंग डिफरेंट कर देते हैं, साइजेस डिफरेंट कर देते हैं, तो ताकि वो नॉन आइडेंटिकल लगे। फ्रेगनेंस यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ है, फ्रेगनेंस खुशबू डिफरेंट कर देते हैं, कि ब्यूटी सोप वगैरह इस टाइप की चीज़ें, सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए, सही रहनी। जैसे अगर हम बहुत सारे फेस वॉशेज़ है, तो सही रहनी के फेस वॉश है, और गार्नियर का है, और फेयर लवली का है, और पता नहीं डिफरेंट किस्म के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके फेस वॉशेज़ आते हैं फॉर मेंस और वुमेन्स। तो उसकी खुशबू अलग होती है, और उसकी टेक्सचर, डिज़ाइन और पैकेजिंग अलग होती है। तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए, होपफुली अब तो समझ आ जाना ही चाहिए। अच्छा, हमारी जो लास्ट आज की हेडिंग वो है, वो क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इसके अंदर भी ये है कि क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है ना, परफेक्ट एंड मोनोपोली मोनोपोली का, तो इसलिए इसके अंदर भी फ्रीडम होता है एंट्री एंड एग्जिट का, सिंस फर्म operating under monopolistic competition on a small in size, and they are free to cater or leave the industry in long run। तो अगर कुछ तो इसके अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जैसे ऊपर हमारे परफेक्ट कंपटीशन में हो रही थी कि इजीली आप लीव कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आज का हमारा सेशन नंबर 10 वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह फिर कल हम लोग इसके डायग्राम्स कवर करेंगे, और हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या क्या हमने कौन सा किस तरह हमने देखनी है डायग्राम। क्योंकि मैं इसलिए आज करवा देती, लेकिन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि दोनों मिक्सअप ना हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।